My name is Khadija and I am the founder of DigiPetroid Agency. We help your brand, your business, your personal brand to create an online digital presence overall and generate leads as well as a brand recall value for your brand. Yeah. So Khadija, kindly tell us when is the right time to start with a social media agency? So I would suggest that first focus on making a base. Of course, if you are having budget, I will suggest कि launch के पहले से ही हमें social media पे focus करना चाहिए because everyone nowadays are obsessed most of the time are on our cell phones. But if there is a budget constraint, I would suggest that put a few amount in ad spend, first generate business revenue from social media, and then we can work on social media marketing for long term creating brand value. See, if there is no revenue or if there is no business out of social media, then you won't have funds to put in next month. ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब काम करो, आपको कोई ना कोई हायर करना पड़ता है एट वन टाइम इन बिजनेस, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन बिजनेस। जब आपके पास बहुत काम होता है तो आपको काम डेलीगेट करना होता है, तो आप किसी न किसी सोशल मीडिया एजेंसी को हायर करें, जैसे खदीजा यहाँ पे करती हैं वैसे आप किसी सोशल मीडिया एजेंसी को हायर करें और अपना सोशल मीडिया का काम डेलीगेट कर दें। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग? See, social media is just a part of digital marketing. Digital marketing is a very wide concept. Posting and being active on social media is one thing, and running Google ads, Facebook, Instagram ads, TikTok ads, even for our international clients, we do that. And making sure that we are not leaving our customers anywhere or everywhere. SEO, email marketing, content writing, it is a very vast subject but everything is connected internally. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ हमने सर्च किया गूगल पे and then the next day we are only seeing ads about that on our Facebook and Instagram. So why is that? Because एफिलिएट मार्केटिंग होता है क्या वो कुछ? नहीं, affiliate marketing is you taking a percentage of whosoever is selling that product. So let's say आपने मुझे बताया कि अगर आप मेरा 10 प्रोडक्ट बेच दोगे तो मैं आपको इतना दूंगी। That is affiliate मार्केटिंग। Yeah. So what is that called जहाँ पे स्टिकी मार्केटिंग होता है ना कि मतलब मैंने अगर आपका एक बार ऐड खोल लिया तो आपको हर जगह वही दिखेगा। Yeah, that is called remarketing. Remarketing. So let's say कि मैंने Google पे सर्च किया, उसके बाद एल्गोरिथम को पता चल गया that I am looking for let's say yellow coat. So next day मुझे कोट के रिलेटेड जितनी भी एड्स होगी Facebook, Instagram, Truecaller, बहुत होता है। या एप्स खोलेंगे तो भी वहीं पे भी वो दिखेगी, जहाँ पे भी एड्स चलाना अवेलेबल है वहाँ पे सब जगह दिखेगी. So that is called remarketing. तो कस्टमर कैसे कर सकते हैं? Remarketing we can do through Google ads, Facebook, Instagram ads, definitely everything, LinkedIn ads also works. So बहुत सारी चीज़ें होती है. अभी हमारा प्रोडक्ट है, सर्विस है, उस पर भी डिपेंड करता है. इफ़ यू आर इनटू प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री देन शॉपिंग एड्स चलती है, डिस्प्ले एड्स चलती है, सर्विस बेस्ड परफॉर्मेंस मैक्स एंड वो सारी एड्स चलती है. बट द बेस इज if you have to start from somewhere, we would suggest that start from social media. Eventually when it is going great, सेल्स बड़ी है, देन वी कैन गो फॉर अ वेबसाइट. जब थोड़ा डेलीगेशन करना है, नाउ यू फील के एक एक ऑर्डर हम मैन्युअली नहीं ले सकते हैं, तब वी विल सजेस्ट के लेट्स गो फॉर अ वेबसाइट. उसके बाद हम लोग गूगल एड्स रन करेंगे, फेसबुक एड्स रन करेंगे. सो इट इज ऑल अबाउट दैट. आप पेमेंट इंटीग्रेट भी करके देते हैं? या पेमेंट इंटीग्रेट भी करते हैं. इस छोटी सी उम्र में आपने मुझे बताया कि आप 20 साल के हो, आप इस छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ कैसे सीख गए? आर यू कंप्यूटर इंजीनियर? नो, एक्चुअली आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, बट बिजनेस बैकग्राउंड रहा है फैमिली का हमेशा. आई हैव सीन पीपल अराउंड मी डूइंग ग्रेट बिजनेस एंड माय फादर टोल्ड मी वेरी क्लियरली दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग इन लाइफ यू हैव टू डू बिजनेस. I'm not letting you do job anyway. I want you to be a businesswoman and that is my vision for you and you have to do it. ऐसे फादर हो तो बेटी खदीजा जैसी होंगी. I am sure your father is very proud of you because I have heard very glowing reviews about Khadija's work. बहुत ही अच्छा काम करती हैं एंड क्लाइंट एक बार में इम्प्रेस हो जाए ऐसी तैयारी करके जाती हैं. सो दैट हाउ डू यू मैनेज दैट? आई मीन व्हाट इज योर थॉट व्हेन यू गो फर्स्ट टाइम टू मीट अ क्लाइंट? मतलब पहली बार जब आप क्लाइंट से मिलने जाते हो तो क्या सोच के जाते हो, क्या तैयारी करके जाते हो? So एक थोड़ा ऑन बोर्डिंग प्रोसेस बनाता है. दैट फर्स्ट व्हेनेवर आई एम टेकिंग अ कॉल थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि क्लाइंट कौन सी इंडस्ट्री से, व्हाट दे आर एग्जैक्टली लुकिंग फॉर. देन ऑफ कोर्स इफ आई एम टेकिंग एक्स अमाउंट, किसी के पास से भी मैं एक्स अमाउंट लेती हूँ, सो आई नीड टू जस्टिफाई दैट व्हाट आई एम डूइंग.
कॉम्पिटिटर रिसर्च करनी पड़ती है, क्या बेस्ट रहेगा उनके लिए, उनका बजटिंग कैसा करेंगे, उनको स्पेसिफिकली फर्स्ट 3 months हाउ देयर बजट विल बी, हमें क्या सजेस्ट करना है उनको, और कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट इफ वी गो इन गूगल एड्स एंड एसईओ एंड एवरीथिंग, कॉम्पिटिटर्स का ध्यान में रख के बहुत चलना पड़ता है कि वो लोग कितना पैसा डाल रहे हैं. एंड आई थिंक दैट इफ वी वांट टू ग्रो इन द डिजिटल वर्ल्ड, जो भी बेस्ट आपकी इंडस्ट्री उसको पकड़ लो कि भाई इससे compete करना है, इससे आगे बढ़ना इससे है, सीखना है, इससे इंस्पायर होना है. exactly, and we have to reach that level above them at a point, but when we are starting we have to reach at that level. Okay, fantastic. So Khadija, I would like to know that social media में Snapchat कितनी वैल्यू रखता है? I mean, मुझे आज किसी ने पूछा था कि क्या मेरे को Snapchat पे भी अब एक्टिव होना पड़ेगा, मैं Instagram पे तो हूँ, Snapchat पे भी अपनी मार्केटिंग करूँ क्या? See, one opinion I have on this is, if आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है, it's around 15 to 25-30 तक का जो एज ग्रुप है, उसको टारगेटेड है, एकदम फास्ट फैशन लेट्स से और समथिंग है, then you can opt for Snapchat. Or else above 25 people don't use, 25-30 above people don't use Snapchat that much. Gen Z and that the whole generation is very active on Snapchat because snaps बनाना होता है, streaks बनाना होता है, everyone yeah, snaps बनानी होती है, streaks बनानी होती है, pictures लेने होते हैं. But mainly what I think is right now even what people do is photos ली, streak send करके, and then they don't use it that much to scroll everything as much as we use. नहीं हो रही है. Yeah, as much as we use Instagram and Facebook, इतना scrolling and time spent Snapchat पे comparatively आपको लगता है कि Instagram को भी कोई छोड़ने, मतलब कोई इसको बीट करने वाला आएगा? YouTube is there. YouTube nothing can beat. Even right now, YouTube is having the highest base. Nothing can beat YouTube. Nothing can beat YouTube. और Instagram को टक्कर देने के लिए कोई आएगा? Instagram को टक्कर देने के लिए right now अभी नहीं है, but there are some servers, but जो दूसरे आते हैं, let's say Discord, Telegram and everything, उनका थोड़ा अलग हो जाता है scene. But if we talk about social platforms and what exactly Instagram is doing, I don't think for next 5 to 10 years there is any competition. There is no competition because लोग Facebook पे करते थे पहले, अब ज़्यादा Instagram पे करते हैं, तो मार्केट बहुत जल्दी मूव हो रहा है. Yeah, but I think mainly it will be Instagram and Facebook. Threads बीच में आया था. हाँ, Threads का क्या हाल है? वो गायब ही हो गया. गायब ही हो गया. Although they are pushing a lot कि भाई हम जो creators हैं उनको revenue generate करके देंगे यार. But I don't think right now in India we are having specifically that culture that we go on Threads. Twitter को छोड़ के लोग Threads पे नहीं आ रहे अभी नहीं? हाँ, नहीं आ रहे. And जो X है, Twitter का replacement new जो उसकी branding हुई. Even that right now in India we are not doing that. So on Twitter and X we go when we have to complain to some ministry about something. Very true. Exactly. Yeah. Very true. Fantastic. So Khadija, what are the 3 mistakes women entrepreneurs usually do in their businesses while using social media? Okay, so I think 3 mistakes I will justify as first is definitely not running ads. Minimum 100 rupees की ad spend की लिमिट है डे की, around 85 or something 83. with GST. With GST, yeah, 83. Invest in that. 500 रुपए भी डालोगे, we spend 500 in today's day like this. You will get input, and secondly, invest in good packaging and good customer experience because it is a different topic. But when the person open it and puts a story on social media, it talks for your brand. कि मैंने ये आज ओपनिंग की, the products look aesthetic and everything. आजकल की generation is very aesthetic type से, कुछ भी aesthetic दिखेगा, even it is a building, मैं मेरी story भी लगाऊंगी. So if I'm liking the product packaging and everything, my opening unboxing experience, I will definitely put it on my social media, and that is what I think people are missing. And third is only talking about sales on your Instagram and Facebook profile. So weekly maybe one post should be about your sales, but रोज उठ के मैं Instagram खोलूंगी और मैं बोलूंगी कि यार ये बोल रहा है प्रोडक्ट ले लो I will get very irritated. Lot of brands, Sugar है, Zomato is definitely killing in the market. Meme marketing करते हैं, उनका जो consumer है मजा आता है उनको. हाँ, उनके साथ मजा आता है. You will follow the page, उनको push नहीं करना पड़ेगा. Sugar है, so they post about insights कि अगर आपको स्किन केयर
करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, दे डू एवरीथिंग. So you need to make sure कि आप कस्टमर को एजुकेट करो, वैल्यू दे रहे हो या एंटरटेन कर रहे हो. Let's say if it is connect, we can post content about that. Let's say if you are going to networking event, 3 things you should keep in mind rather than just pushing about a connect thing. Fantastic. Too good. Your ideas, your views were too good. मैं ये ध्यान में रखूंगी कि कनेक्ट में आप नेटवर्किंग से रिलेटेड चीजें डालूंगी. Yeah, definitely, because when people see their content कि अच्छा मैं ये करना चाहिए नेटवर्किंग में, ये नहीं करना चाहिए. So एक होता है ना नेटवर्किंग, तो first of all not everyone is very extrovert. हाँ. Yeah. Extrovert introvert भी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है. Wow. Yeah. You're giving the ideas already. Wow. Please take it. I will be very happy to help everyone. बट हाँ, एक चीज होती है कि नेटवर्किंग होता है, सोशल मीडिया होता है, पीपल आर अ बिट हेजिटेंट. यस, वन मोर आई वुड लाइक टू ऐड इज add a face to your brand. People will forget your logo, they won't forget your brand. Even on my personal agency's page, we are working right now on more of personal branding reels. You see every big company, Zomato, Dipendra Goyal, you see Sugar, Vinita Singh, every big company, उनके फाउंडर्स, सीईओ, दे आर ऑन सोशल मीडिया एंड दे आर हैविंग ह्यूज फॉलोइंग. वो तो टीवी पे जाके करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं ताकि उनके ब्रांड को फेस मिले. एग्जैक्टली. एंड अपार्ट फ्रॉम इट आल्सो सारी चाय सुट्टा बार के भी हमें पता है, एमबीए चाय वाला के भी पता है, जो भी बड़ी ब्रांड बनानी है, पीपल विल फॉरगेट योर लोगो, दे वोंट फॉरगेट अ फेस यू सी. सो ट्राई कि मोर एंड मोर अगेन एंड अगेन हमारे फीड में जो आ रहा है किसी के भी टारगेट करें, सो वी आर हैविंग अवर फेस. शर्म आती है. जब पैसा आएगा तब शर्म नहीं आएगी. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. या सो टेल मी खदीजा कि जो सोशल मीडिया है वो फेसबुक पे बेटर होता है मार्केटिंग या इंस्टाग्राम? Depends again on your target audience, what age group you are targeting. I feel that above 40 people prefer most of Facebook. Under 40 they prefer Instagram and everything. But I think you should go both ways. एक बटन होना आता है post also on Facebook. So why to miss out on anything? And I think working those people जो अभी भी इतना tech savvy नहीं है, जो पहले से Facebook use करते आ रहे, they are not on Instagram. So it is better to post on both and maintain a consistency. 40 के बाद क्या लोग अपने अपीयरेंस को लेके थोड़े से वो हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, तो उनको शर्म आती है, उनको डर लगता है कि हमारी झुर्रियां दिखेंगी. नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. आई थिंक सोशल मीडिया इज वेरी हैप्पी प्लेस. इंस्टाग्राम इज मोर वल्नरेबल पीपल, आई नो, हेट कमेंट्स एंड ऑल. फेसबुक पे यू वोंट सी इट दैट. हां, इसीलिए वो 40 प्लस फेसबुक पे है, क्योंकि फोटोज नहीं डालनी पड़ती इतनी ज्यादा. नहीं, both the apps are equally good. It's just about that where your actual target audience is. We got a lot of leads from Facebook because 40 plus के साथ ज़्यादा पैसा होता है, we can say that. So there was this real estate company we were working with. तो उनके लिए जब हम लोग Instagram, Facebook दोनों पे ads चला रहे थे, we were getting leads only from Facebook. अच्छा, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि आप WhatsApp का भी करते हो? या व्हाट्सएप में अभी हमारे पास व्हाट्सएप में कुछ मैसेजेस आते हैं जो कि कंपनीज के होते हैं, एंड वो हमने कभी नहीं सब्सक्राइब किया, हमने कभी नहीं किया, वो बस चला के आ जाता है. समझ में आता है कि हम ब्रॉडकास्टेड है शायद, लेकिन वो मतलब शायद ग्रीन टिक के साथ आते हैं या कुछ ऐसा होता है कि वो कंपनी से सीधा ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से कुछ व्हाट्सएप के साथ टाइप किया हुआ है. सो उसमें एक व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर होता है, यू कैन बाय दैट एवरी, एंड आई वुड सजेस्ट 1000-2000 का कुछ सॉफ्टवेयर होता है, बल्क मैसेजिंग डाल सकते हैं, बट दैट इज नॉट लीगल. That is not legal. That is not legal. So बड़ी कंपनीज के मैसेजेस आते हैं. ओनली इफ मतलब लेट्स से कि फ्लिपकार्ट अगर आपको मैसेज कर रहा है तो आपने कुछ बाय किया होगा तो उसके पास डेटा है, सो दैट कंपनी इज हैविंग राइट टू सेंड यू मैसेज, or else no one is having right to send you any messages. Okay. Bulk में messages जाते हैं दिन के 500-600 जितना में डालने हो, 1000-2000 even we have. देखिए, bulk messages आते हैं एक नंबर से, और जो हमारे पास मैसेज आता है उस पर लिखा हुआ होता है कंपनी नेम. वो भी एक सॉफ्टवेयर है. हाँ, सब सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, बस you have to fill in the details and वो numbers डाल दो सारे पेस्ट करके, it will keep sending. But you need to have a good database for that. हाँ, वो 1000 में हमेशा वो renew करना चाहिए database. Okay. But I will say it is a very tedious thing. What I think, अगर budget कम है, so don't go for WhatsApp marketing. Numbers निकालते getting qualified leads, and personally when I have worked with it, we don't get that good of results. If we talk about getting results from all the channels,
Google Ads will top everything. Google Ads is too good. वो भी आप करते हो? Yeah, we do Google Ads. For website it is a blessing. Yeah, for website it is a blessing. Why? I will tell you. Because see, Facebook, Instagram, you are going to 10,000 people that this is my product, see it. This is a yellow code. If you are interested, buy it. But what happens in Google is लोग जिसको already yellow code चाहिए वो search करेंगे that yellow code or whatsoever I want to buy. और उसमें हमारी ऐड दिखाएंगे. So the intention on Google Ads is very clear that मुझे तो ये परचेस करना ही है, बट किससे करूँगा वो चीज़ है सिर्फ. Okay. Yeah. Fantastic. लेकिन Google Ads में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है क्या? पैसा ज़्यादा लगता है, उसमें CPC कॉस्ट पर क्लिक होता है. एक बार किसी ने क्लिक किया तो उसके पैसे कटते हैं. तो ऐसा बोला जाके 10-15 जन आते हैं उसमें से एक खरीदता है. बट इट इज वर्थ इट. सी, हम हमारे क्लाइंट्स के लिए फेसबुक एड्स, गूगल एड्स दोनों रन करते हैं. फेसबुक एड्स में उनको 100 लीड आती है तो उसमें से 3-4 कन्वर्ट होती है. गूगल एड्स में अगर 10 लीड आ रही है तो एक कन्वर्ट हो जाएगी. कॉस्टिंग इज ऑलमोस्ट सेम. अच्छा. हाँ, इट हैपेंस. अच्छे से कन्वर्ट हो जाती है. बट अगेन वो गूगल पे इंटेंशनली कोई जाके उस वर्ड को ढूंढता है. दे आर वेरी क्लियर. फेसबुक पे तो अच्छा ऐसे क्लिक हो गया, हमने किया. So out of 100, 3 or 4 can be your good customers and they buy actually. बट कॉस्ट फिर से वही आ जाता है. ब्रांडिंग करनी हो, सबकी आंखों में आना हो, प्रोडक्ट दिखाना हो, सो 10,000 यहाँ पे बहुत रीच आ जाती है. फेसबुक, इंस्टाग्राम में यू गेट क्रेजी रीच. गूगल एड्स में 10,000 ऐसे निकल जाएंगे. बट गुड कस्टमर्स, यू विल गेट गुड लीड्स. बोथ आर इम्पोर्टेंट. बोथ आर इम्पोर्टेंट. अगर किसी की वेबसाइट नहीं हो तो उसको गूगल एड्स का क्या ही करेगा वो? वेबसाइट नहीं है, so I would suggest first and foremost thing get a Google My Business account. That is for free. GMB जो registration हम करते हैं, registration. That is best. Even before the like website भी लोग बाद में देखते हैं. I will just give you a very common example. हमें जब कहीं पे रेस्टोरेंट में जाना होता है, we search restaurant near me. Google detects हमारी लोकेशन. 3-4 जो भी रेस्टोरेंट आते हैं उसमें सब पिक्चर्स देखेंगे, एम्बियंस के, रिव्यूज देखे, डायरेक्शन डाला और चला गया. आजकल तो सब रिव्यूज से होता है. रिव्यूज से ही होता है. यू नीड गुड रिव्यूज, फोटोज अच्छे होने चाहिए सराउंडिंग्स के, और वो डायरेक्शन डाल के या फिर हम डायरेक्टली कॉल कर किसी को नहीं करना आ रहा हो तो गूगल पे डालना, रजिस्टर करना. GMB is very easy. I will say that YouTube वीडियो 5 मिनट का देख लोगे आ जाएगा. and it is a very easy and seamless process. आफ्टर अ वाइल 2-3 महीने के बाद व्हेन यू आर, एंड उससे 100% रिजल्ट्स आते ही है. आफ्टर अ वाइल व्हेन यू आर जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम दैट यू कैन पास इट ऑन टू अवर एजेंसी और एनी एजेंसी यू वांट टू. बट इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस. एनी टीनेजर इन योर हाउस और इवन 45-year-old कैन डू दैट. GMB registration 45 इतना बुढ़ा नहीं होता. 55-65 I don't know your age actually. I will be soon, so I don't think I'll get that old. I'll be still alive and kicking. We will say 65. Okay. Yeah. So tell me, आपके पास कोई आगे करवाना चाहे गूगल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि कई नहीं आता है, वुमेन को सच में नहीं आता, तो क्या आप कर देते? I will do it for them. Anyone from Connect if comes to me, I will do it for them. I will guide them. Fantastic, fantastic. Yeah. So खदीजा, आप एक बात बताओ, जब आप देखते हो किसी को सोशल मीडिया करते हुए तो सबसे बड़ी गलती क्या दिखती है आपको? Not making content relevant to niche, और मतलब अगर मैं small entrepreneurs की बात करूँ, so what they will do कि first let's say salon का पिक्चर डाला है, बाद में खुद घूम रहे फ्रेंड्स के साथ उसका डाला हुआ है. So वो प्रोफेशनल नहीं दिखता. People love if you are charging, let's say मैं पैसा डाल रही हूँ सोशल मीडिया में, सारी जगह सब कुछ कर रही हूँ, and you want to charge that amount. सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए जो बोलते हैं ना, 10 रुपए की चीज भी 100 रुपए मुझे दिखानी है. So you have to be present that way. You have to be professional कि मैं वो चीज चार्ज कर सकूं. फ्रेंड्स के साथ घूमने की फोटो डालते हैं, मेरे 3000 फॉलोअर्स हैं, मैं इसमें नहीं डालूंगी तो किस में डालूंगी? हाँ, but that is not good for your brand actually. हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग चाहिए, बट इस मैनर में नहीं कि फ्रेंड्स के साथ हम लोग सब कुछ पोस्ट करें. Very true, very true, very true. Yeah, I agree. And don't buy fake followers. That is also one thing. अच्छा, एक मेरे पास अभी आया था किसी का क्वेश्चन कि अगर मैं फेक फॉलोअर्स खरीद लिया है मैंने, मेरी अब मैं क्या करूं? Start from a new account. Your account gets dead. I want to do a high five with you because that is what I suggest to people, and I
completely understand. Please explain to them कि क्यों ऐसा गलत है ये. सी अकाउंट पहले तो डेड हो जाएगा. जो 10,000 फॉलोअर्स फेक डलवाए वो ना कि लाइक करने वाले, ना कि उनके व्यूज आने वाले. सो पीपल आर वेरी स्मार्ट, दे विल चेक योर व्यूज एंड दे विल अंडरस्टैंड कि भाई ये अकाउंट फेक ही. सेकेंडली एल्गोरिदम डेड हो जाता है. वो बोलेगा कि इसके पास इतने फॉलोअर्स उसमें से इतने भी लाइक नहीं आ रहे. इट इज ऑफ नो गुड. एंड वन थिंग आई विल टेल वेरी क्लियर, ऑल्दो माय कंपनी हैंडल्स सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, डोंट रन आफ्टर लाइक्स, फॉलोअर्स एंड एवरीथिंग. इफ यू अगर 100 जन टारगेटिंग है, 100 जन भी हमारे फॉलोअर्स है, उसमें से हमारे 20 भी कस्टमर है, इट इज वर्थ इट. 10,000 में से एक भी नहीं होगा, इट वॉन्ट वर्क. सो टारगेट ऑलवेज क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी. True. Wow, Khadija, our views are so similar. I'm really happy that at a age, मतलब मेरे से आधी उम्र में आपको पता है ये सब चीजें. So I know that you will rise wherever you go. Let's hope for the best. Thank you so much. Fantastic. So one last thing I would like to know कि कोई एक एडवाइस जो आप लोगों को देना चाहोगे जो YouTube पे अपना वायरल होना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं. ये लास्ट चीज नहीं है, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन आप मुझे YouTube के लिए स्पेशली कुछ राय दो लोगों को. For YouTube, go with at least 2 to 3 short contents per week. मतलब 30-40 सेकेंड वाली जो हम शॉर्ट्स बनाते हैं, and under 5 minute one video. So एक एल्गोरिदम. एंड अगर आप पे कैपेसिटी है कि आप 3 वीडियो बना रहे हो वीक के, इतनी कैपेसिटी है, देन गो फॉर इट. ऐसा नहीं कि पहले मैंने रोज हमने वीडियो डाली और उसके बाद दूसरे महीने है ही नहीं YouTube. स्टे कंसिस्टेंट विद इट. अच्छा, कंसिस्टेंसी YouTube पे भी मैटर करती है? या एवरीवेयर कंसिस्टेंसी मैटर्स. ऐसा नहीं है कि थोड़ा दिन बहुत कंटिन्यूअस पोस्ट किया, बाद में एक महीने तक पोस्ट नहीं किया तो थक गए. Commit to only what you can, actually do on every platform. Yeah. So every week once YouTube के लिए? Yeah, live you can come once in 15 days. It's advisable. And one long form video once a week, which is under 5 minutes. और 2-3 shorts डाल सकते हैं. Shorts record करने में Okay. And shorts मतलब reels जितना Instagram पे काम करती है उतना YouTube पे करती है? YouTube पे it works more. See, सब डिपेंड करता है कि वीडियो किस टाइप की है, एडिटिंग किस टाइप की है. बिकॉज अटेंशन स्पैन 2 सेकंड का है लोगों को. 3 भी नहीं बोलूंगी, 2 ही सेकंड का है. बिकॉज इतना हम फास्ट पेस्ट वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना, 1 सेकंड में 2 सेकंड नहीं, स्क्रॉल. सो द हुक वर्ड्स, फर्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्टिंग है या नहीं, उन सब से डिपेंड करता है कि वो एंड तक वॉच करेगा. बिकॉज यूट्यूब पे वॉच आवर्स पे पूरा सब हो जाता है. ट्रू, वेरी ट्रू. अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि लिंक्डइन पे किसको जाना चाहिए? If you are professional, if you are into B2B, everyone should be on LinkedIn. At least you should have a LinkedIn profile. अभी जैसे मेरी बात करूँ, मेरे जो कस्टमर है B2B है, so I have to work with companies and not directly the consumer. So I definitely need to have a good LinkedIn profile. लेकिन जैसे साबुन बनाने वाले या जैसे मतलब घर से खाकरा बनाने वाले, क्या उनको लिंक्डइन पे होने की जरूरत है? They should be, because I will tell you कि अभी जो क्या सीन है that HRs जो होते हैं कंपनी के, they look out for people who are into gifting space. So a lot of inquiries come that हमें ये gifting चाहिए. लेकिन वो हैम्पर लेते होंगे ना, वो एक साबुन 2 साबुन थोड़ा नहीं. हैम्पर्स भी लेता है, बट इफ वी सी द ब्रॉडर विजन, लेट्स से इफ यू आर हैविंग अ गुड प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, सम टाइम यू विल बी नीडिंग एन इन्वेस्टमेंट इफ योर प्रोडक्ट इज हैविंग दैट मच कैपेसिटी, देयर लिंक्डइन कम्स टू इन प्लेस. वाओ, that is a broader picture women have to see, and LinkedIn पे होना बहुत जरूरी है, चाहे आप छोटा सा बिजनेस कर रहे हो चाहे बड़ा बिजनेस कर रहे हो. एंड टेक रिस्क विद योर बिजनेस. ऐसा नहीं है कि भाई ओके आई एम रीचिंग लेट्स से 50,000 पर मंथ, मुझे इतनी सेल्स हो जाए, आई एम हैप्पी विद इट. कैसे बढ़ानी इन्वेंट्री, अभी मुझे और ब्रांडिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग में कहाँ पे मैं स्पेंड कर सकती हूँ, टीम में किसको हायर कर सकती हूँ. आपके हिसाब से इंस्टाग्राम पे खर्च करने का बेस्ट बजट मतलब होना चाहिए, इतना बजट तो होना ही चाहिए? एड स्पेंड, हाँ, आई वुड से एड स्पेंड मिनिमम 83 में ही काम हो जाता है. उसमें जितनी लीड्स आती है, अगेन डिपेंड्स के कौन से, जैसे कि लेट्स से हमारे एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ वाटर मैन्युफैक्चरिंग में है वो लोग, एंड दे आर लुकिंग फॉर डीलरशिप्स. 83 रुपीज में उनको इतनी सारी लीड आ जा रही है, वो बोल रही है कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स, अरे वन ऑफ द मोस्ट प्राउड थिंग अबाउट माय क्लाइंट्स इज, अभी भी 2-3 के साथ मेरे कॉल थे, वो सब बोल रहे हैं कि आप लीड्स दे रहे हो, वी नीड अभी हायरिंग के ऐड चलाओ, सेल्स की लड़की चाहिए हमें, हम लोग नहीं मैनेज कर पा रहे, अब एड स्टॉप कर दो. बट यू नीड टू फिल्टर इट आउट. आई वांट से कि 100 लीड तो मैं दे रही हूँ, बट उसमें से सारी काम नहीं करेगी, 3-4 करेगी, बट इट विल बी वर्थ इट.
So start with that budget, no problem. And if you are having, let's say, a e-commerce brand product, कि भाई जहाँ पे सर्विस नहीं दे रहे हो, वहाँ पे you have to increase the budget, and shopping ads वहाँ पे भी Facebook में भी चलती है, वो चलानी पड़ती है. वाओ वाओ. और लिंक्डइन पे ऐड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लिंक्डइन पे ऐड नहीं करनी चाहिए if you are not into B2B. अगर B2B नहीं है तो ऐड नहीं करनी चाहिए. एंड लिंक्डइन पे ज्यादा प्रीमियम होता है कि यू कैन डायरेक्टली ट्रेनर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, वो लिंक्डइन पे जाके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो एड्स चलाएं? आई वुड से उनका एड्स नहीं होता, उनका एक होता है प्रीमियम रिएक्टिव, मतलब कि आप अपना थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो, कोई सर्च करे तो, और आप किसी को भी, लेट्स से मुझे आपको लिंक्डइन पे डायरेक्टली रीच आउट करना है या फिर आपका ईमेल और नंबर चाहिए, सो दे गिव मी द राइट टू डू दैट. बट व्हाट आई थिंक इज कि अगर बहुत बड़े कंपनी के ओनर होते हैं या फिर इट्स अ पब्लिक फिगर, दे आर ऑलरेडी ऑन इंस्टाग्राम, सो यू डोंट नीड टू परचेज दैट थिंग इन ऑर्डर टू मैसेज देम. देयर आर लॉट ऑफ वेज राइट नाउ टू रीच आउट टू देम पर्टिकुलरली. लिंक्डइन के लोग थोड़ा इंस्टाग्राम पे होंगे, वो लोग तो प्रोफेशनल्स हैं. No, I am speaking, let's say I want to get in touch with you. Now you are a owner of Connect, founder and everything. So आपका Instagram मुझे मिल ही जाएगा if and open होगा वो. हाँ, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं कि एक मार्बल कंपनी है, वो मार्बल कंपनी परचेज डिपार्टमेंट से करना चाहती है, वो लिंक्डइन पे जल्दी से मिल जाएगा ना. तो उनको you asked me about the coaches side, तो वो suggest किया. But B2B, if you are into the business, B2B करना जैसे मार्बल, so you need to have that LinkedIn. कोचेस को जरूरत नहीं है, लिंक्डइन को वो कंपनी जिसके पास प्रोडक्ट है वो B2B करना चाहते हैं उनको. हाँ, एंड इवन इन कोचेस, लेट्स से कि मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेनी है फुल ऑन, तो उसमें भी लिंक्डइन की जरूरत होगी, बिकॉज यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू द HR ऑफ दैट व्हाटएवर कंपनी यू वांट टू वर्क इन, एंड देन यू कैन पिच देम. ये चाहिए. Fantastic. So thank you so much, Khadija. It was a pleasure and insightful experience talking to you. Definitely. Thank you everyone for watching. Stay tuned for more such videos. Bye bye.